सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पेशेंट शफीक से। आइए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। This is not genetic, but I'm the first person in my family who is facing this issue of the hair loss for a long time. Because with the patch, I don't think so that I can do everything, whatever I'll be able to do without the patch. So it was good, kind of very good experience. I'm Shafiq Ahmed, I'm from Birmingham. I'm facing the hair fall for more than 20 years. And I think it started when I had appendix operation. So I have used the minoxidil for a while, and I have looked for different places for the treatment, but didn't help. So finally I started using the patch, but then was causing me like a lot of trouble, itching and whatnot. So I started doing my research, and I came across that where to get my treatment done. So the QST was the place, and they convinced me. Actually, the approach gave me the confidence to come here and get the treatment. So I'm here now, and I'm sure that I'm in the safe hands. So actually, I think this is not genetic, but I'm the first person in my family who is facing this issue of the hair loss for a long time. And as you can see that I have lost so much hair, and the doctor have suggested like 4,000 to 500 grafts will do the job. Initially this is going to be the first stage, and if they require, then they might call me for the second procedure, but hopefully that will be enough. But let's see how it goes. And yeah, hopefully that will change my life and my approach towards my life, and maybe I'll be more confident once I have. Because with the patch, I don't think so that I can do everything, whatever I'll be able to do without the patch. Regarding the surgery, I was a bit nervous, whatever I had anxiety before, hopefully that will not happen, and things will go smooth. When I saw this clinic, it seems like it's very nice, tidy and clean. And after speaking to one of the doctors, I felt comfortable. So as the doctor suggested that this is going to be the painless surgery, and it's going to be okay. So let's see what happens. I'm looking forward to it, and hopefully things will be all right as being said. And yeah, and I'll share my result and experience with you guys and with everyone who needed the transplant too. And yeah, sure, I'll share all my experience, and good luck to me. Thank you very much. Yeah. Hi, as you can see that my procedure has been completed. As you can see, it was more than 4,500 grafts. However, it was done in 2 sessions, which was quite long duration actually for a day, but it was painless. Kind of the medication, the local anesthesia which the doctor has given me, and they have explained me the procedure in the very beginning. Throughout my procedure, they will keep explaining and asking things, how about about my wellness. So it was good, kind of very good experience. So it was done in 2 days, and throughout the time while I was going through the procedure, the cleanness was good. The hospital is clean and hygienic. The staff were taking care of the hygiene, and yes, altogether. And also after the procedure, they asked me all the questions about my wellness, how I felt and whatnot. So it was wonderful experience, to be very honest, overall, and I felt great.
and I suggest QST whoever people wants to go for the hair transplant. I think they should look for the QST as an option, and they can do their research, and hopefully they will find what they are looking for. And once the procedure was done, the staff explained me about the medication and everything, how and the precautions to be taken care of after the transplant. So yes, I'm aware of what's happening in the beginning, what's going on, and at the end they have also explained me what I have to do to take care of this transplant. So yes, it's a very nice experience. Well done, QST. Thank you, QST, for taking care of me and for the procedure has been taken care of. Thank you very much. अभी आपने पेशेंट शफीक की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट हृदय की ओर, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। और मेरी जेनेटिक हेयर लॉस हो रही थी कि अगर हेयर लॉस होता है तो आपका कॉन्फिडेंस में थोड़ा दिक्कत होती है। आपको पहले लोग जैसे देखते थे अब कुछ अजीब सा देखने लगेगा, तो उससे क्या होता है कि आपको खुद को भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है सेल्फ में देखने के लिए। हाय, मैं हृदय बैरागी हूँ, मैं कलकत्ता में रहता हूँ और मेरी एज 27 है और मेरी जेनेटिक हेयर लॉस हो रही थी, तो इसलिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ और 24 को मैंने बुक करवाया था, तो आज जाके पॉसिबल हुआ इधर आना। मैंने तो वैसे कुछ रेमेडीज़ तो घर पे ट्राई नहीं किया था, वो शैम्पू कर रहा था जिससे कि मेरा बाल झड़ना कम हो जाए, मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। वो ऑलमोस्ट आपका जो है ना स्कैल्प में थोड़ा नरिश करता है और कुछ नहीं ज़्यादा। तो बहुत देर से मैं सोच रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ, तो फाइनली आई एम हियर देयर। फ्रॉम 2024 को शायद मैंने इन लोगों के साथ कांटेक्ट किया, तो तब जाके मैंने डिसीजन ले लिया कि करवाना है और मैं आज 25 को आज इधर हूँ। कि अगर हेयर लॉस होता है तो आपका कॉन्फिडेंस में थोड़ा दिक्कत होती है। आपको पहले लोग जैसे देखते थे अब कुछ अजीब सा देखने लगेगा, तो उससे क्या होता है कि आपको खुद को भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है सेल्फ में देखने के लिए। आज 2 फरवरी है 2025। मैं इधर सुबह को 9 बजे आया था, तो उसके बाद मेरे को डॉक्टर साहब ने मेरा हेल्थ चेकअप किया। फिर से मेरा ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट था वो चेक किया, उसके बाद जो पेपर वर्क था वो भी कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे स्किन पे लोकल एनेस्थीसिया का क्या रिएक्शन होता है वो भी चेक कर लिया। अभी फ़ोटो सेशन के बाद मैं वीडियो सेशन में हूँ, उसके बाद मैं हेयर ट्रिमिंग के लिए जाऊँगा। और मेरा पहले ही तो मेरा जो हेयर कंसल्टेशन था डॉक्टर साहब के साथ वो भी कंप्लीट हो गया। मुझे एस्टिमेशन कितना ग्राफ्ट लग सकता है वो भी सर ने बता दिया। अभी तो मेरे को मैम ने सजेस्ट किया कि आपको 2800 ग्राफ्ट लग सकते हैं और बोला है मैम मैक्सिमम 3500 तक जा सकती है। वो तो अभी नहीं पता चलेगा कि कितना लगेगा, वो मेरा हेयर पैटर्न और हेयर मेरे को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर वो ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग के बाद पता चलेगा कि कितना एक्चुअल आपको ग्राफ्ट लग सकती है। मेरे 35 तक मैक्सिमम उसमें हो जाएगा। मैंने मेरे मम्मी को तो बताया था क्योंकि मैं इकलौता बच्चा हूँ मेरे परिवार का, तो वो तो बहुत डर रही है अभी। तो क्या होगा कि क्या वो उनको समझाया कि नहीं सच कुछ डेंजरस बात इसमें नहीं है। वो पूछ रहे थे बार बार कि जान जाने की कोई खतरा है कि नहीं, तो मैम ने मेरे को सजेस्ट किया कि नहीं, जान जाने की कोई खतरा नहीं, जो होगा एंडोडर्मल में होगा स्किन के ऊपर। उसके वजह से मेरे थोड़े कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मैं करवाने का सोचा। अभी तो बहुत नर्वस हो रही है मेरे को, क्योंकि ओटी में तो डर लगेगा ही, ये नेचुरल है।
तो उसमें कितना पेन होगा कि नहीं होगा, ब्लड लॉस कितना होगा कि नहीं होगा, वो एक कॉन्सर्न की बात तो है। और इसके बाद आफ्टर सर्जरी मेरा रिज़ल्ट कैसे आएगा वो भी मैटर करता है, क्योंकि मैं एक एक्सपेक्टेशन में हूँ ना कि मेरे को अगर करवा लेता हूँ तो अच्छा होगा, तो वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी थोड़ा डाउट में भी हूँ। और जो मैम ने बोला कि भाई जो 35,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगेगा उसमें होगा कि नहीं होगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, पेन होगा कि नहीं होगा, ये तो बहुत इसके वजह से थोड़ा बहुत नर्वस में हूँ। तो जैसा कि मेरे को बोला गया था कि अब मेरे को आफ्टर वीडियो सेशन हेयर ट्रिमिंग होगा, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। आप मेरी जर्नी में साथ रहना कि मैं देखता हूँ और क्या क्या चीज़ होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अभी सर्जरी कंप्लीट हो गया, 5 से 7 मिनट्स हो गया। और कल मेरा स्लिटिंग हो गया था, इट्स टेक्स ऑलमोस्ट 3 आवर। आज मेरा सर्जरी हुआ, इट्स टेक्स ऑलमोस्ट 6 आवर्स। वैसे तो ज़्यादा पेन नहीं हुआ, जब तक एनेस्थीसिया नहीं देगा तो तब तक तो थोड़ा बहुत पेन होगा। अगर एनेस्थीसिया के बाद आपको पेन नहीं होगा, उतना खास पेन नहीं होता है, यू कैन कंटिन्यू। मैंने जो डिसीजन लिया था QHT से करवाने का, टोटली वर्थ इट। मेरे को मेरा डिसीजन अच्छा लगा। मेरा रिजल्ट्स देखते हैं, मेरे रिजल्ट्स कैसे जाते हैं। अभी तो ठीक लग रहा है, और बाकी जो होता है मैं तो आप लोगों को साथ शेयर करता ही रहूँगा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, तो स्टाफ वगैरह और क्लीनिंग तो बहुत ही अच्छा है इधर। मैं तो QHT से AFU टेक्निक से जो ये लोग करते हैं ना, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। देखते हैं आगे कैसा रिजल्ट होगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे अच्छा ही लग रहा है। मेरे एक्सपेक्टेशन जो है लगता है मेरे को मिलेगा। अभी देखते हैं बाद में क्या होता है कि नहीं होता है। इसके बाद मेरे 1 मंथ बाद मेरा फर्स्ट PRP होगा, तो तब देखेंगे मेरा रिज़ल्ट कैसे आता है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक कंटिन्यू रहिए, और जब आप PRP करवाने आऊँगा तब देख लेना कैसा रहा मेरा ट्रांसप्लांट। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू QHT। अभी आपने पेशेंट हृदय की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पेशेंट निशांत की ओर, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। If you're going for transplant, I'll suggest you should definitely go. This transplant is it's not it will give you illusion, so it's not completely like you will regrow entire hair. Doctors try to make it illusion. Hey, hi, I'm Nishant Trivedi, back in QHT. This is my third PRP, and I came from Chennai. So the experience had been amazing. The guidelines and the feedbacks were really good, and they were following up regularly. So anything which I had doubts, there were doctors available. So my transplant has been done on 5th of September 2023, and this is almost a year completed for me, and I could see the good results. Like, my hairline is back, and there's a lot of increase in confidence.
So I was referred to QHT by a few friends. I came to contact with them. Those guys had it here, the surgery, and their results were really good. Then I looked into YouTube and I saw a lot of celebrities doing their transplant here. So I thought, why not give it a try? So I came here for actually consultation, but after that I realized my condition has gone critical and I need to take action. So after listening from the feedbacks and reviews, so I thought at that time QHT might be a good option. So going through the process, those guys actually did really good work on me. My surgery was supposed to be done in 2 days, but luckily it was a single day process. It took about 8 to 12 hours, but it was like you can't experience pain without a gain. So yeah, there was a little bit pain, but weeks after the process, the surgery, the pain reduced and it almost negligible now. So and follow-up PRPs actually are good because PRP gives you good results. So if you're going for transplant, I would suggest you should definitely go for at least a 6 or 7 PRPs before a year ends. So the process was about the surgery process took about 8 to 12 hours. Meanwhile, the surgery, I couldn't feel anything because I was given anesthesia and like it was really painless process. But post the surgery, after 24 hours post the surgery were very critical. Besides pain, we have to take a lot of care. We have to maintain that area, which is even the donor and the place where the grafts are placed. So both the areas needs to be kept clean and into a healthy environment. After that 24 hours, we are supposed to remove the bandage from the back of the head, which is the donor area. So you can see my donor area is completely healed and there is no scars as the other process, which is there are 2 types of transplant process. You might have to go to research that. One is slit process and the other one is FUE. I went for FUE, where they pick out the grafts and place it in your transplant area. So this surgery is more vital and it's like scar free. There's no remarks which are like seen after that the surgery. And if you're going for slit process, there could be a slightly visible thin line at the back of your head. So the key thing is you have to for at least 2 weeks you have to stay in a closed and clean hygienic environment for the surgery to progress. And post that, actually care is mandatory for at least a month. Past that, actually you should let the hair grow on its own. You shouldn't be more focused and stress out whether your results is coming or not. Result, actually for me it took about at least 4 to 5 months for the hair to regrow, because it's a process. Like roots are planted, you need to stress free, those hair will grow, definitely grow. Meanwhile, I want to suggest one more thing. Like this transplant is it's not it will give you illusion. So it's not completely like you will regrow entire hair. Doctors try to make it illusion that your head is completely covered with hair, but they can't make it back to the natural form which is previously. So this is a remark which I would give. Better consult few doctors before going for a transplant. So the review for me in this clinic, it's actually a lot of celebrities came in and went for the surgery. So it's a safe process according to me. But still it's your responsibility if you're going for surgery or anything. And the cost here is a bit more moderate. I won't say it's expensive, because if you're going for a better better hospital or better surgeon, you need to pay a little higher than average. So it gives you a little safe and will explore a lot of things. Actually, it's not about the safety, the kind of hairline they give, and the depth, the
density of hair that matters a lot, and the placements of the grafts, the extraction, the entire process should be painless and in a clean environment. So this, according to me, the QHT did a great job here, and they took precise instruction and they took a detailed surgery. So I think we should go for a QHT. Just give it a consultation at least if you're not going for a transplant, because the reviews are good, and if the reviews are good, so people are having it. And I saw a lot of number of reviews, like mostly referring for QHT. So yeah, it was a great experience for me. अभी आपने पेशेंट निशांत की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी और अब मिलते हैं आज के हमारे आखिरी पेशेंट शोजेफ से। आइए उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। बाल जल्दी चले जाने की वजह से काफ़ी मतलब एज भी है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो मुझसे एज में बड़े हैं, वो भी मुझसे छोटे लगते हैं और बाल ना होने की वजह से काफ़ी फर्क पड़ता है। एक डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, तो उनसे कंसल्ट किया था मैंने, तो उन्होंने मुझे बायोटिन्स और कई सारी टैबलेट्स लिखी थी। मैंने उसको यूज़ किया, कई ऑयल लिखे थे मुझे, बट उससे मुझे कुछ काफ़ी रिजल्ट मिला नहीं। नदीम बनी भाई सेवेंजर्स वाले, उनका वीडियो देखा मैंने, तो उन्होंने भी ट्रांसप्लांट यहीं QHT क्लिनिक हरिद्वार से कराया था। मेरा नाम जोसेफ रिजवी है, मेरी एज 30 ईयर्स है और मैं कानपुर से आया हूँ QHT क्लिनिक हरिद्वार अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। मैंने काफ़ी जगह सर्च किया था, कई सारे क्लिनिक्स में मैंने देख रखा था पहले से, तो काफ़ी रिव्यू मिले मुझे। फिर मैंने यूट्यूबर हैं हमारे नदीम बनी भाई सेवेंजर्स वाले, उनका वीडियो देखा मैंने, तो उन्होंने भी ट्रांसप्लांट यहीं QHT क्लिनिक हरिद्वार से कराया था। तो देन मैं देख के उसके बाद मैंने यूट्यूब से आपका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, फिर मैंने बात करी, तो आज मैं फाइनली यहाँ आया हूँ। मुझे हेयर फॉल का इशू करीब 6 साल से है। तो पहले तो मैंने काफ़ी ट्राई किया, जो ऑनलाइन चलता है वो मैं देख रहा था। उसके बाद मैं करीब 3 साल से हेयर पैच यूज़ कर रहा था, बट उसके बाद भी मुझे लगा कि हेयर पैच में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो ओरिजिनल हेयर की बात होती है, तो इसलिए मैंने आज हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया है। मुझे लगता है कि हेयर फॉल मे भी मेरे पेरेंट्स में तो मतलब किसी को जेनेटिक तो नहीं लगता, बट हाँ मैं कई बार जो अपनी सिटी से दूर जाके रहा हूँ, दूसरे वेदर में रहा हूँ, इस वजह से भी मुझे लगता है कि हेयर फॉल हो गया है। बाकी मेरी फैमिली में किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहले करीब 1 साल जो है काफ़ी एक डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, तो उनसे कंसल्ट किया था मैंने, तो उन्होंने मुझे बायोटिन्स और कई सारी टैबलेट्स लिखी थी। मैंने उसको यूज़ किया, कई ऑयल लिखे थे मुझे, बट उससे मुझे कुछ काफ़ी रिजल्ट मिला नहीं। तो फिर मैंने 1 साल यूज़ करने के बाद उसको बंद कर दिया। फिर मैं हेयर पैच पे आ गया एंड देन अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। हेयर फॉल की वजह से मुझे मतलब काफ़ी मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी लो हो गया था, जिस वजह से मैं
किसी से बात करने में या विजिट करने में, या जैसे मतलब पहले मैं काफ़ी एनर्जेटिक रहता था, जैसे मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो कस्टमर विजिट करना होता है, चीज़ें हैं, तो मैं काफ़ी आगे रहता था, बट उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया था और इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ। बाल जल्दी चले जाने की वजह से काफ़ी मतलब एज भी है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो मुझसे एज में बड़े हैं, वो भी मुझसे छोटे लगते हैं और बाल ना होने की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं करीब 3 साल से हेयर पैच यूज़ कर रहा था, बट मुझे हेयर पैच में पहली चीज़ तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो आपके नेचुरल हेयर में कॉन्फिडेंस होता है, एंड सेकंड चीज़ उसमें हेयर पैच में काफ़ी उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और काफ़ी ख्याल भी रखना पड़ता है कि आप स्विमिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो एक आध बार मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ भी है और उसमें गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है, स्वेटिंग होने लगती है, तो वो एक मतलब बन नहीं पाता है जो ट्रस्ट होता है जो आपके नेचुरल हेयर के साथ बन पाएगा, वो हेयर पैच के साथ नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, इसलिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ मूव करना चाहता हूँ। एंड देन जब मैं उसके बारे में सर्च कर रहा था तो मेरा एक कलीग है ऑफिस में, तो उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो उन्होंने मुझे भी QST क्लिनिक के बारे में बताया, तो मुझे पता चला उन्होंने भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। उनको हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए अभी करीब 4 महीने हो गए और उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो मैं इसलिए और ट्रस्ट कर सकता हूँ QST क्लिनिक के ऊपर। पहले मैंने यूट्यूब पे जब मैं सर्च कर रहा था, मैंने गूगल पे भी सर्च किए इंडिया में अच्छे जो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है, तो मैंने काफ़ी क्लिनिक सर्च किए अपना दिल्ली में भी, लखनऊ में भी, बट मैं उनके बारे में रिव्यू उनका चेक करता था, चीज़ें देखता था, वीडियोस तो काफ़ी मिलती थी, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। और QST क्लिनिक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज इसका रिजल्ट जो है वो मेरी आंखों के सामने है। मैंने जैसा बताया कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी यहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, एंड जो यूट्यूबर्स हैं मैं उनकी पहले की कंडीशंस भी देख रहा हूँ वीडियो में और आज की भी देख रहा हूँ, और जो मेरा कलीग है वो साथ में रहता है, उसकी कंडीशंस भी देख रहा हूँ, तो मुझे इसलिए ट्रस्ट है क्योंकि ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो इसमें मैं बार बार रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मुझे जहाँ ट्रस्ट होगा मैं वहीं पे कराऊंगा, तो मुझे QST पे ज़्यादा ट्रस्ट है। मैंने यूट्यूब से ही आपका नंबर मिला था, तो मैंने वहाँ से आपके यहाँ कॉन्टैक्ट किया, तो मेरी यहाँ पर बात हुई, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छे से बात किया, तो उन्होंने मेरे प्रॉब्लम के बारे में समझा, फिर उन्होंने मुझसे मेरे फ़ोटो शेयर्स करने के लिए बोले, मैंने फ़ोटो शेयर्स किए उनको, फिर उसके बाद देन उन्होंने 1 घंटे बाद मुझे मेरे कितने ग्राफ्ट यूज़ होने हैं, क्या है प्राइस क्या है, और उसके बारे में बताया, फिर प्रोसेस के बारे में बताया कि काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। मुझे पहले एकदम डीप नॉलेज नहीं थी जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि FUE टेक्निक अलग होती है, QST चीज़ें अलग होती हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इसके बारे में समझाया, तो उसको देख के मुझे काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड हुआ QST के ऊपर। एंड उसके बाद से मेरा, अब देखिए अभी आया हूँ ट्रांसप्लांट कराने। फैमिली में जब मैंने इसके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताया तो पहले तो मेरे फैमिली में लोग, मेरे भाई हैं और सिस्टर्स हैं, वो रेडी नहीं हो रही थी, तो क्योंकि उनको थोड़ा सा डर लग रहा था, उनको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में रिव्यू काफ़ी अच्छे नहीं मिले थे, तो लेकिन मैं हेयर पैच पहले यूज़ करता था, तो मैंने उनको काफ़ी कन्विंस किया, मैंने बताया QST के वीडियोज़ दिखाए, उनके रिव्यूज़ वगैरह दिखाए, काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो मान गए, फाइनली उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकूँ। क्लिनिक अच्छा होना तो बहुत ज़रूरी है, उसका मतलब उसके जो स्टाफ है और जो डॉक्टर्स हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका क्या पिछला जो रिकॉर्ड्स रहा है वो कितना ज़्यादा अच्छा रहा है या कैसा रहा है, तो ये ज़रूर मायने रखता है आपके लिए। एंड QST क्लिनिक में मैंने काफ़ी चेक किया, तो यहाँ के डॉक्टर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और स्टाफ भी यहाँ का बहुत अच्छा है चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ से ही ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ। अभी जैसे आप मेरी कंडीशन देख रहे हैं काफ़ी बार्डनेस है, तो जब मेरा फर्स्ट टाइम बात हुआ था तो उन्होंने मुझको बोला था कि आपके करीब 5500 ग्राफ्ट्स की जो है नीड है, क्योंकि मेरा ग्रेड 6 ग्रेड पे है, तो उसमें काफ़ी ग्राफ्ट की नीड होती है। तो अभी तो मैं ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ, बाकी देखता हूँ कि कितना ग्राफ्ट लगता है क्या है। मैं मॉर्निंग में करीब यहाँ आ गया था 12 बजे करीब, तो उसके बाद से अभी तक मेरा मतलब ब्लड सैंपल लेके ब्लड रिपोर्ट भी आ गई है, वो भी ओके है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है, मेरा BP शुगर बाकी चीज़ें भी चेक हो चुकी हैं, तो सब ओके है। अभी मुझे बेसिकली हेयर रिमूवल के लिए जाना है, एंड उसके बाद मेरे लाइन बनेगी जितने हेयर ग्राफ्ट की नीड है मुझे, तो वो मुझे आज बताया जाएगा। देन नेक्स्ट डे मेरा फिर हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस हो। ये मेरा अभी तक का QST के साथ जो भी एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड बाकी देखिए कल हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो पे जो भी होगा अपना रिव्यू दूंगा और उसके बारे में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।
तो फाइनली आप देख रहे हैं कि जैसे कि मेरी सर्जरी हो चुकी है। अभी मैं 10-15 मिनट हुआ है मुझे ओटी से बाहर निकले हुए, और ये आप देख सकते हैं मेरा हेयर ट्रांसप्लांट, मेरे पूरे मतलब काफ़ी बार्डनेस थी मेरी, वो सब कवर हो चुकी है, और मेरे करीब 5200 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा क्वेस्टी के साथ। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, और डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 दिन पहले मैं यहाँ आया था, तो आज 3rd डे है और मेरा आज ट्रांसप्लांट जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेस्टी में ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन मुझे अभी देख के मुझे लग रहा है कि मेरा ये बेस्ट डिसीजन था क्वेस्टी से ट्रांसप्लांट करवाना। एंड सेकंड, काफ़ी हाइजीन के मामले में अगर मैं देखूँ तो ओटी में काफ़ी हाइजीन के लिए सब चीज़ थी प्रॉपर, वहाँ स्टाफ बहुत अच्छा था, वेल बिहेव था। एंड आप देख सकते हैं जैसे कि स्टार्ट में जब मैं गया था तो जब एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया तो कुछ थोड़ा बहुत माइनर पेन होता है, 5-10 मिनट का था वो। उसके बाद से फिर मुझे पेन पता नहीं चला, और कब मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और फाइनली आप देख सकते हैं पूरा हेयर ट्रांसप्लांट मेरा जो पूरे सर में हुआ है। जैसे अभी मुझे 10-15 मिनट ही हुए हैं निकले हुए ओटी से, तो अभी सर मेरा थोड़ा सा हल्का सा भारी भारी है एंड थोड़ा सी इचिंग टाइप है। वो भी इसलिए क्योंकि एनेस्थीसिया का सर है। डॉक्टर से मैंने उसके बारे में बताया था, उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम बाद ये आपको एकदम रिलीफ हो जाएगा। अभी मेडिसिन मुझे दिए खाने के लिए, उसके बाद मुझे काफ़ी आराम हो जाएगा। तो अब जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ PRP कराने यहाँ आऊँगा क्वेस्टी क्लिनिक अपने हरिद्वार में, तो मैं आपको अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.